Hello and welcome everyone. I am Jatin Verma. Welcome to Jatin Verma's IAS Academy. So guys, in this video, we are going to talk about the most important topics for Indian economy for UPSC Civil Services Exam 2020. तो जो topics prelims 2020 के लिए important हैं, we are going to have a quick discussion on these topics. This is a kind of reckoner list for you guys regarding the topics that were there in the news in the year 2019. तो 2019 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं. जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया, इंडियाज ग्रेट स्लो डाउन, then Nirvik scheme, rating agencies, the conduct of rating agencies in our country, national investment and manufacturing zones, banning of unregulated deposit schemes. Side by side, alongside these topics, I'll also tell you as to how to memorize things, what to memorize, what is to be focused upon, your energy should be invested in what detail. These things we are going to discuss in our next 45 minutes to 1 hour. So let's get started. Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana, reforms in Manrega. Manrega has been linked with consumer price index for agricultural laborers so as to boost the rural economy. रूरल इकोनॉमी में लोगों की इनकम को बूस्ट देने के लिए, कंजम्पशन डिमांड को इंक्रीज करने के लिए रिफॉर्म्स इन मनरेगा हैव बीन ब्रॉट अबाउट. सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स के साथ में इसे लिंक किया गया है. नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP हैज बीन ब्रॉट अबाउट. लीड्स इंडेक्स, देन सरल इंडेक्स, देन कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, then ease of doing business, favorite of our government. This government is known for ease of doing business, right? Then multidimensional poverty index again is important. Now side by side I would like to ask a few questions as well as to whether it is necessary for the RBI governor to vote in monetary policy committee meetings. Whether RBI governor का क्या जरूरी है कि RBI गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स में इन दी फर्स्ट प्लेस वो वोट करें, क्या ये जरूरी है? तो ये सब चीजें हैं. नाउ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी यानी कि जो उबर ओला के ड्राइवर्स रहते हैं उन वैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रहता. 20th लाइवस्टॉक सेंसस, 20th लाइवस्टॉक सेंसस के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब चीजें. पावर परचेज अग्रीमेंट्स between the power consumers and the power producers, जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज साइंड एन अग्रीमेंट, पावर परचेज अग्रीमेंट विद प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद टाटा पावर, रिलायंस पावर, लाइकवाइज. ओके, प्रकाश पोर्टल फॉर sale and for the trading of power units. Then contract farming, what is contract farming? Is it good for India or is it bad for India? तो ये prelims और mains दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है. Likewise, national infrastructure pipeline, investment in national infrastructure pipeline. Economic survey 2019-20 says that investment in national infrastructure pipeline will be, investment in NIP will be a kind of drain on the resources, financial resources of government of India. Then India Skills Report 2020. This is another news. Mega food park scheme, dedicated freight corridors, Northeast gas grid project, World Employment and Social Outlook, Northeast pipeline grid project, Pradhan Mantri Urja Ganga project, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and then restructured weather based crop insurance scheme. Then Apiary on wheels. These things are important. So one by one, GDP estimation was in news because the former chief economic advisor, जो कि अब इंडिया छोड़ चुके हैं, राइट, पता नहीं नाराज हो गए सरकार से या क्या हुआ. Former chief economic advisor Arvind Subramanian has concluded that country's growth has been overestimated by around 2.5% between 2011-12 and 2016-17. Then changes made in India's GDP series. In 2015 सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, किसके अंडर आता है ये ऑफिस, ये आपको फोकस करना है. ये चीजें इंडिया ईयर बुक में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. In 2015 Central Statistics Office under the Ministry of Statistics came up with revised methodology for calculation of GDP of the country.
and the base year was changed from 2011-12 to 2014-15. तो बेस ईयर चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट आया, और स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने, अरविंद सुब्रमण्यम का ये कहना है कि स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने जो इंडेक्स डिवाइस किया कि कैसे जीडीपी को मेजर किया जाए, उस वजह से शायद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% ज्यादा बताया जा रहा है, ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है, जितना है उससे 2.5% ज्यादा. So India's great slowdown. Why in news? Former economic advisor, again Arvind Subramanian, along with IMF's former India head Josh Feldman, discussed the reasons and remedies for India's current economic slowdown. अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर, जब तक ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे तब तक इनमें बिल्कुल जोश नहीं था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आईएमएफ के फॉर्मर इंडियन हेड जॉश फेलमैन के साथ में मिलके ये अब सरकार के खिलाफ कुछ कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही हैं. जब तक इंडिया में थे तब तक ये डिफेंड कर रहे थे गवर्नमेंट को, राइट. तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? Twin balance sheet problem is that the failure on the part of infrastructure companies to service the debt reflected in the stress that started to accumulate on the balance sheet of state-run banks. Thus, where the NPA ratio had reached almost 12%. Triple balance sheet problem. So, multiple types की balance sheet. Twin balance sheet problem was the term used in Economic Survey 2016-17, and a question was asked on this aspect as well. There was a question that was asked on this कि twin balance sheet problem क्या है? What is twin balance sheet problem, by the way? Twin balance sheet problem is when there is a problem in the balance sheet of bank, there is a problem in the balance sheet of company. For example, company could be Jet Airways. Jet Airways is having a liability in its balance sheet. A liability on its balance sheet, loan from, let's say, PNB or loan from SBI worth 5,000 crore rupees. If this loan is not paid on time, then the bank from which this loan has been borrowed will also be accumulating some problem. Loan is an asset for the bank. Okay, so this is the balance sheet of Jet Airways, and this is the balance sheet of, this is balance sheet 1. This is the balance sheet of Jet Airways. This is the balance sheet of SBI Bank, right? So assets and liabilities. Now, loan given to some company is an asset for the bank. If the company is not able to pay this loan of 5,000 crore rupees, which was an asset, now it will become non-performing asset. तो ये non-performing asset हो जाएगा. इसी को बोला जा रहा है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम किसी कंपनी की है, प्राइवेट कंपनी जिसे लोन दिया गया है, अब वो प्रॉब्लम बैंक की प्रॉब्लम बन जाती है यहाँ पे. क्लियर? तो इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जा रहा है. लाइकवाइज टीबीएस को अभी देखते हैं हम. ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम व्हेन द बैंक्स रिफ्रेन्ड फ्रॉम लेंडिंग. जब बैंक्स ने लेंड करना बंद कर दिया एनबीएफसीज को, क्योंकि आईएलएफएस, आईएल एंड एफएस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, financial services, this was a very big NBFC, non-banking financial company. What are non-banking financial companies? Non-banking financial companies जैसे कि मुथूट फाइनेंस, जो कि पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते लेकिन जो कि लोन दे सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ वेरी बिग एनबीएफसी. अब एनबीएफसी आईएलएफएस का फेलियर हुआ 2018 में, 19 में. तो जैसे ही उसका फेलियर हुआ 2018 सितंबर में, उसके बाद जो शॉक वेव्स थी, एनबीएफसी ने जिन बैंकों से लोन लिया था आईएलएफएस ने, उन बैंक्स का लोन देना बंद कर दिया. इसका असर बैंक्स पे दिखा. अब एनबीएफसी ने जब आईएलएफएस फेल हुआ तो जो इसके क्लाइंट थे, जैसे कि मान लो कि किसी एलएनटी ने या किसी जीएमआर कंपनी ने इससे लोन ड्यू था लेना, एक किस्त तो आईएलएफएस ने दे दी, जिसके बेसिस पे एक 15 करोड़ का अगर लोन था तो 15 करोड़ में से जीएमआर को 5 करोड़ तो दे दिए गए लोन के. उस 5 करोड़ पे जीएमआर ने जमीन खरीद ली. अब उस जमीन पे जब जीएमआर प्रोजेक्ट बनाने लगा, आईएलएफएस दिवालिया हो गया. आईएलएफएस जब दिवालिया हो गया तो ये बिल्डिंग जो है आधी अधूरी खड़ी है, यानी कि जीएमआर की लायबिलिटी तो बन गई लेकिन जीएमआर उस लायबिलिटी को मीट नहीं कर पा रहा, और आईएलएफएस की जो बैंक की तरफ लायबिलिटी तो थी वो भी मीट नहीं कर पा रहा. तो इसे ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जा रहा है, राइट. तो ये
छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, इन्हीं टर्म्स के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और हम लोग उन्हें आंसर नहीं कर पाते। तो आप लोगों को ये फोकस करना है। आई हैड डन द इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस ऑल्सो ऑन दिस चैनल ऑन 1st of February. सो आई वुड रिक्वेस्ट जिन लोगों को ये टर्म्स या बजट का एनालिसिस देखना है तो आप लोग 1st February का वीडियो है बजट एनालिसिस पे, वो भी आप देख सकते हैं। एंड टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू कैन विजिट माय वेबसाइट करंट अफेयर्स के लिए जो हमारी वेबसाइट है www.jatinverma.org। वहां से आप डाउनलोड सेक्शन से सारे जो हमारे पीडीएफ्स रहते हैं आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? एंड यू कैन सेंड फॉर फ्यूचर क्लासेस ऑफ माइन टू अटेंड दी फ्यूचर क्लासेस लाइव। आप व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप पे ये आपको मैसेज भेजना है सिंपली अलर्ट लिख के। अलर्ट लिखना है आपको और आपको भेजना है इस मोबाइल नंबर पे 9582868080। यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब में ऐड कर दिया जाएगा सो दैट यू रिमेन अपडेटेड अबाउट आवर एक्टिविटीज एट JVIAS, right? So this is there. Now coming to this part, 4 बैलेंस शीट चैलेंज। अब जब 4th बैलेंस शीट में चैलेंज आ गया, अब GMR ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो जमीन खरीदी थी, उस जिस कंपनी से जमीन खरीदी थी उस कंपनी को भी पैसे देने थे। जमीन जिससे खरीदी थी उस किसान के पैसे या उस कंपनी के जिसे हम रियल एस्टेट कंपनी कहते हैं उस कंपनी के पैसे भी अटक गए। 25 करोड़ की जमीन थी, जमीन की पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि 10 करोड़ रुपए जिसे हम एडवांस मनी कहते हैं वो दे दिए गए, लेकिन बाकी के 15 करोड़ रुपीस यहां पे भी रुक गए। अब रियल एस्टेट कंपनी जो है वो उसके पैसे भी अटक गए। तो रियल एस्टेट कंपनी ने जो लोन लिया था इस जमीन को खरीदने के लिए बैंक से, वो भी खत्म। आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियन इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट। एक प्रॉब्लम रिपल इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं कि जैसे पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो वो आगे बढ़ते चले जाता है चैलेंज, वैसे ही बैंक ने ILFS को पैसे दिए, ILFS ने GMR को दिए 15 सालों के लिए, बैंक ने ILFS को ये पैसे दिए थे 7 सालों के लिए। अब ILFS ने डील तो अच्छी की, GMR को ये पैसे 18% या 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, बैंक से 9% पे लिए। अब ILFS क्या करता है, ये जो NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये अपने एरिना में स्पेशलाइजेशन हासिल करती हैं, राइट? और स्पेशलाइजेशन उनको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, GMR के प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट होगा, उसमें हिस्सेदारी रखें या लोन रखें, कितना लोन दिया जाए, कितनी शेयर होल्डिंग ली जाए। अब ILFS ने GMR के प्रोजेक्ट में पैसे तो लगा दिए, लेकिन वो पैसा रिकवर कब होगा, 15 साल के बाद। बैंक से पैसा लिया है 7 सालों के लिए, मनी वॉज बोरोड फ्रॉम बैंक्स फॉर जस्ट 7 years, बट मनी वॉज लेंट to GMR for 15 years or 20 years. So this created asset liability mismatch. ILFS की बैलेंस शीट वैसे अच्छी थी लेकिन कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो गई। कैश फ्लो में प्रॉब्लम होना अच्छी बात नहीं होती। लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी क्राइसिस हम इसी को कहते हैं कि जब एक कंपनी की बैलेंस शीट वैसे तो अच्छी है, मैं कहने को वैसे बहुत अमीर हूं, लेकिन आज मेरे पास यदि अपनी EMI पे करने के पैसे नहीं है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने के पैसे नहीं है, तो मैं लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहा हूं। ILFS के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ILFS ने जो बिल्डिंग स्टार्ट करी, GMR ने ILFS के दिए गए आधे लोन से, आधा लोन दिया गया 25%, उससे ये बिल्डिंग स्टार्ट तो कर दी, लेकिन ये बिल्डिंग भी अटक गई। अब GMR ने इसके पैसे इस बिल्डिंग के कंप्लीट होने पे रियल एस्टेट कंपनी जिससे जमीन ली गई थी उसको बोला कि हम आपके पैसे बाद में देंगे। तो चौथी बैलेंस शीट रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट में भी दिक्कत हो गई। इंडियाज ग्रेट इकोनॉमिक स्लोडाउन इज डिफाइंड बाय 4 बैलेंस शीट चैलेंज। 4 balance sheet challenge includes the original 2 sectors, infrastructure companies and banks, plus now the NBFCs and real estate companies. Thus, monetary policy does, अब अगर हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी से रिवाइव करने की कोशिश करें तो नहीं, सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट? इसीलिए अरविंद सुब्रमण्यन जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, तो उनको शायद ये छूट नहीं मिली होगी ये सब लिखने की। अब ये अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर जो है यूएसए से रिलीज कर रहे हैं, राइट? तो हमारे यहाँ दिक्कत यही है, रघुराम राजन छोड़ गए इंडिया, राइट? उसके बाद उर्जित पटेल पीछे पीछे, उसके बाद अरविंद सुब्रमण्यन को भी ले गए, राइट? मतलब ले गए क्या, मतलब ये लोग जो है छोड़ के जा रहे कंट्री, और वहां से इन्होंने सरकार की एडवाइस के लिए एक पेपर लिखा है, यू शुड लॉन्च अ न्यू एसेट क्वालिटी रिव्यू टू कवर बैंक्स एंड एनबीएफसीज,
रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। सेकंड, मेक चेंजेस टू आईबीसी टू बेटर अलाइन इंसेंटिव्स, रेजोल्यूशन, सेकंड पार्ट। थर्ड, create two executive led public sector, two government led public sector asset reconstruction companies बनाई जाएं, bad banks, one each for real estate and power sector। अब क्योंकि पावर सेक्टर कंपनीज जैसे कि आप अनिल अंबानी को जानते हैं, रिलायंस पावर, बिल्कुल पावर नहीं बची उसमें, राइट, रिलायंस पावर दिवालिया होने की कगार पे है। तो अब ये कहा जा रहा है कि रिजॉल्व किया जाए इसको, वन बाय वन किसी और लेक्चर में हम समझेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे। स्ट्रेंथन दी, अब यहाँ पे कहा जा रहा है पावर सेक्टर, मैंने कोई पेपर तो नहीं लिखा है, राइट, लेकिन जो मेरी समझ काम करती है, इन्होंने 2 एग्जीक्यूटिव लेड पब्लिक सेक्टर एसेट कंपनीज बनाई हैं। मैं 3 कहना चाहूंगा, कौन सी तीसरी कौन सी होगी? अरे भाई आप लोग भी मेरे साथ प्रिपेयर करते आ रहे हो। टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ऐसा एक रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाने की जरूरत है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में भी क्राइसिस है, राइट। एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन, आइडिया, उनके पास भी कोई नहीं है आइडिया कि कैसे रिवाइव किया जाए कंपनीज को, राइट, ये सब चीजें हैं। लिंक रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स टू रेजोल्यूशन, यानी कि अरविंद सुब्रमण्यन के पेपर में ये कहा गया है कि रिकैपिटलाइजेशन उन्हीं बैंक्स के साथ में किया जाए, उन्हीं बैंक्स में गवर्नमेंट जो है पैसे इन्वेस्ट करे जिन बैंक्स का रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है। श्रिंक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने ही नहीं चाहिए। अरविंद सुब्रमण्यन ने ये बात तब भी कही थी जब वो इंडिया में थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएनबी जैसे बैंक्स होने ही नहीं चाहिए, जब नीरव मोदी स्कैम हुआ था तब, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर में कहा है, इसको किसी और लेक्चर में हम समझेंगे। निर्विक स्कीम, निर्विक स्कीम क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये स्कीम लाई गई है। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू स्कीम कॉल्ड एज निर्विक स्कीम। अबाउट दिस स्कीम, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ईज द लेंडिंग प्रोसेस and enhance the loan availability for exporters, enhance the loan availability. It is an insurance cover guarantee that will cover up to 90% of the principal and interest. exporters को इंटरेस्ट पे पैसा देने के लिए और उसका रिस्क कम करने के लिए। अब जैसे निर्विक स्कीम, निर्विक से एक नाम याद जरूर आता है, नीरव मोदी, राइट। तो निर्विक, नीरव मोदी जैसे लोग जो पैसा लेके भाग जाते हैं, मान लो कि अगर कोई डेविड कॉलमैन हेडली या कोई ऐसा व्यक्ति यूएसए में बैठा है, आप उसको डायमंड्स बेच रहे हो, तो उसमें बहुत रिस्क है। अब आप अगर बैंक से पैसा लेते हो, बैंक को डर लगेगा कि कौन है, क्या पता कोई डोनाल्ड ट्रंप हो वहां पे जो पैसे लेके वापस ना दे, राइट, कोई भी हो सकता है। ऐसे केस में बैंक का रिस्क कम करने के लिए निर्विक स्कीम लाई गई, लेंडिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए। जैसे पीएनबी के साथ जो धोखा हुआ, अगर किसी और बैंक के साथ में होता है, इस तरफ हम लिख देते हैं नीरव मोदी को, राइट, नीरव मोदी। यहाँ पे कुछ और मत समझना, ये नीरव मोदी है यहाँ पे, राइट। तो एक्सपोर्टर नीरव मोदी ने किसी को यूएसए में डायमंड किसी से मंगवाए, अब 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बैंक के जा रहे हैं, राइट। अब बैंक अगर 11,000 करोड़ रुपए देगा तो बैंक को डर तो लगेगा, बैंक इसलिए देगा ही नहीं। इसीलिए यह किया गया है कि बैंक जब प्री शिपमेंट से पहले अगर कोई कंसाइनमेंट जा रही है, मान लो कि अगर इंडिया से नीरव मोदी ने या फिर किसी ने कोई शिप भेजा, वो शिप से कुछ माल जा रहा है, उसके पैसे डिलीवरी होने के बाद मिलेंगे तो भी दिक्कत, कोई माल रख के बैठ जाए, राइट। सो दीज थिंग्स आर देयर, क्लियर। तो इसीलिए ये चीजें जरूरी हैं समझना कि कोई शिप जा रहा है अगर इंडिया का, किसी ने कोई एक्सपोर्टर ने कोई माल भेजा, बैंक से अगर इस माल को बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं या बैंक ने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है इसके लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंक को डर लगेगा। इसीलिए ये निर्विक स्कीम लाई गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये अच्छा इनिशिएटिव है, निर्मला सीतारमण का, ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो बैंक्स में पैनिक सिचुएशन है, जो फियरफुलनेस है बैंक्स में, उसको कम करने के लिए। Export Credit Guarantee, this Corporation of India currently provides credit guarantee of up to 60% loss in case the money is not paid. Now the enhanced cover, Nirvik scheme में cover को improve किया गया है. It will ensure that foreign and rupee export credit interest rates will be below 4% and 8% respectively for the exporters. Right? It will ensure that foreign and rupee export credit interest rate will be below 4% and 8% respectively for the foreign exchange rate जो है, foreign loan के लिए रेट जो है 4% होगा। रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर रुपी टर्म्स में आप मनी बोरो करते हो तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा।
रेटिंग एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि 2017 अक्टूबर में कि इंडिया की अपनी रेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए। क्यों हम किसी बाहर के फॉरेन की, यूएसए की स्टैंडर्ड एंड पुअर या मूडीज के मूड पे डिपेंडेंट रहें, राइट? मूडीज इज अ यूएस रेटेड, यूएस बेस्ड कंपनी। अब अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप को या यूएसए को ये लगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को टार्निश करना है या स्पॉइल करना है, तो यूएसए मूडीज को ये बोलेगा कि आप अपना मूड, वैसे तो आपका मूड इंडिया के प्रति पॉजिटिव है, आप अपना मूड खराब कर लो, मतलब इंडिया की रेटिंग को स्पॉइल कर दो। इंडिया की रेटिंग अगर मूडीज स्पॉइल करेगा तो क्या होगा? इंडिया में यूएसए से डॉलर्स आने बंद हो जाएंगे, एफपीआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, right? Not only from USA but from rest of the world, from Japan. Based on the rating of these big 4 or 5 companies, people would stop investing in India. Foreign FDI, FPI, the projection about India's growth story would become negative. इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए कुछ कुछ नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। जब तक इंडिया की अपनी जो है कंपनीज नहीं आती, अपनी इंडिजिनस रेटिंग एजेंसीज इंडिया की नहीं बनती, तब तक एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। Pertinent question is, Government of India has granted the final approval to 3 new national investment and manufacturing zones, namely Prakasam, Andhra Pradesh, Sangareddy, Telangana and Kalinganagar, Odisha. तो इस कॉन्टेक्स्ट में difference between NIMZ and SEZ becomes important. Under National Manufacturing Policy 2011, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 ये लाया गया है NIMZ, क्लियर? NIMZ पॉलिसी हैज बीन ब्रॉट अबाउट अंडर SEZ एक्ट। SEZ एक्ट के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाए गए हैं। जो कंपनीज SEZ में लोकेटेड होती हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक टैक्सेस नहीं लगते, क्लियर? तो उनके ऊपर एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए मटेरियल पे कोई टैक्सेस नहीं लगते। मिनिमम एरिया NIMZ का कितना है? 5000 हेक्टेयर्स। इसमें SEZ में एक लेकुने ये था कि द एरिया, मिनिमम एरिया कुड बी 1000 हेक्टेयर्स। ये इसका फ्लॉ भी है। फ्लॉ क्या है? कम से कम NIMZ का एरिया 5000 हेक्टेयर्स होना चाहिए। कहाँ है जमीन? 5000 हेक्टेयर से अगर एरिया कम है तो आप NIMZ स्टार्ट ही नहीं कर सकते। SEZ में एरिया लिमिट कम है, राइट? लेकिन इसमें अपर लिमिट थी, ये एक फ्लॉ है इसमें। NIMZ में अपर लिमिट कोई नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या SEZ बनाने वाली कंपनी को जमीन मिल जाती है तो वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। हम लोग सभी जानते हैं सुब्रता रॉय, और हम लोग सभी ये भी जानते हैं कि सुब्रा रॉय के ऊपर इंक फेंकी गई थी, राइट? उनके मुंह पे कालत पोत दी गई थी क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं रिटर्न किए थे। कोर्ट में उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चक्कर कटवाए। उन्होंने क्या किया था? सहारा की, सुब्रता रॉय कौन है? सहारा के चीफ। उन्होंने सेबी से बिना अप्रूवल लिए सहारा की बॉन्ड्स इशू कर दी और पब्लिक से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए गए। सेबी डायरेक्टली यहां से अप्रूवल लेके जाना चाहिए था, बट बिना अप्रूवल लिए सीधे ही पब्लिक से पैसा ले लिया। इसको क्या बोला जाता है? अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। लोगों से पैसा लेना, जो कि गलत था। अब जब ये केस निकल के आया सुप्रीम कोर्ट ने काफी चक्कर कटवाए सुब्रता रॉय के कोर्ट में, लेकिन माने नहीं सुब्रता रॉय। जब डिटेल्स मांगी गई तो 3 ट्रक भेज दिए गए पेपर्स के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कि आप पढ़ लो बैठ के। तो जजेस को जब गुस्सा आया तो जजेस ने जो है फिर रिमांड पे भी भेज दिया सुब्रता रॉय को। तो ऐसी स्कीम्स की वजह से जनता के पैसों को खतरा है। द एक्ट डिफाइंस अ डिपॉजिट एज एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड थ्रू एन एडवांस, अ लोन और इन एनी अदर फॉर्म विद अ प्रॉमिस टू बी रिटर्न्ड विद और विदाउट इंटरेस्ट। ऑल डिपॉजिट टेकिंग स्कीम्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेलेवेंट रेगुलेटर, चाहे वो सेबी हो या कोई और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के केस में। इसीलिए इस एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, डेजिग्नेटेड कोड्स, सेंट्रल डेटाबेस। लाइकवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को रिवाइव करना चाहती है या डेवलप करना चाहती है। इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इतना अच्छा नहीं है। नीड ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हैज बीन फेल्ट इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम। तो प्रेशर ऑन बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट,
हम लोग बैंकों पे निर्भर रहते हैं, बैंक्स में हम लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं और बैंक जो है पब्लिक का पैसा जो है आगे टाटाज, अंबानीज, अदानीज को देता है, राइट, अदानी ग्रुप को या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉर दैट मैटर। अब बैंक के पास पब्लिक का पैसा जाता है क्योंकि वी इन इंडिया वी ट्रस्ट द बैंक, but we don't want to give the money directly to Adani. We lend the money to bank on a fixed deposit of 7% rate of interest, and the same money accumulated by bank from n number of people is given to Adani at a rate of 11% or effective rate of 12%. Bank earns a margin of 6% in the process. If people of India would directly lend to Adani through bonds, wouldn't it be better? Because that way people would get 10% rate of interest. But we don't trust the industrialists in India, क्योंकि सुब्रता रॉय जैसे लोग भी हैं, वो बिना कोई अप्रूवल लिए पैसा लेने आ गए तो, राइट, और हम लोग बैंक पे ट्रस्ट करते हैं कि बैंक नहीं डूबेगा, और इसीलिए क्योंकि बैंक के ऊपर विश्वास होने का ये कारण एक भी है क्योंकि ऑल दीज बैंक्स आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, सरकारी बैंक होने की वजह से हमारा विश्वास है। लेकिन अगर मान लो कि कल को कोई ये बैंक ये कहे कि मैं डूब गया, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं है, क्या कर लोगे? ठीक वैसे ही कंपनी अगर ये कहे कि वी आर बैंकरप्ट नाउ, वी डोंट हैव द मनी टू पे यू बैक, व्हाट कैन यू डू? नथिंग। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को बैंक्स की जगह पे, अब इस पे क्या है कि इस पे बैंक्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, अब एनपीए एटसेट्रा, तो गवर्नमेंट नाउ वांट्स कि बॉन्ड मार्केट को डेवलप किया जा सके, डायरेक्ट डीलिंग बिटवीन द पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दे कैन directly do it through bond market. A mature corporate bond market enables companies to raise funds across different maturities, 3 years maturity, 1 year maturity, 6 months maturity, including for infrastructure project with long gestation period, completion period. Retail investors like you and me will also get a chance to invest in such products via debt funds, bonds. तो इसलिए बॉन्ड मार्केट इंडिया में इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का फायदा क्या है कि अगर इफ यू आर मैनेजिंग सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट, एंड यू वांट टू बाय 25 एयर कंडीशनर्स, तो आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे कि अमेजन क्या है, प्राइवेट मार्केट प्लेस है, आपको जो एसी कंपनी सस्ते में देती है आप वहां से परचेज कर लेते हो, राइट। अब अगर एलजी यहाँ पे एसी बेच रहा है, लाइफ इज गुड, राइट, और बाकी छोटी छोटी कंपनीज हैं जैसे एक्मा है या नेपोलियन का एसी बना होता है, राइट, असेंबल करके, अगर ये छोटी कंपनीज भी, एमएसएमईज भी एसी वगैरह बेचना चाहती हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कुछ करप्ट आईएएस ऑफिसर्स जो पकड़े गए हैं पास्ट में, उनकी बात कर रहा हूं, इसमें टेंडर में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। 25 एसी, एक आम तौर पे एयर कंडीशनर कितने का आता है? 25,000 रुपीज, but government departments they buy these air conditioners at an inflated price of 28,000 rupees, right, and one AC is gifted to their son-in-law, फ्री में एसी लग जाएगा, या फिर घर पे एक नया स्प्लिट एसी लग जाएगा, एलजी फ्री में दे देगा, क्योंकि आप महंगे दाम पे 25 एसी खरीद रहे हो। तो इसीलिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सभी कंपनीज, एलजी, हिटाची, सैमसंग, सबके एसी, क्रोमा का, टाटा का एसी, वोल्टास का एसी, सबके एसी यहाँ पे लिस्टेड होंगे। उस बेसिस पे जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो एसी सबसे सस्ते में दे रही होगी कंपनी, उसी से परचेज करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर नॉट जस्ट बिग कंपनीज बट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। Steel Authority of India Limited becomes the first central public sector enterprise to enter into MOU with GEM. अपनी खरीदारी के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहली कंपनी ये बनी है, तो इसीलिए जेम पोर्टल की डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। Likewise, multi-dimensional poverty index is an other important topic. Then corporate social responsibility, right? जलान कमेटी रिपोर्ट, बिमल जलान आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, तो इन्होंने टू असेस द एडिक्वेट साइज ऑफ कैपिटल रिजर्व्स, आरबीआई को यह कहा गया कि आप अपने कैपिटल रिजर्व्स, क्योंकि सरकार का जो आरबीआई के पास में बफर रिजर्व रहता है कि अगर कुछ ऐसी क्राइसिस सिचुएशन इंडिया में होती है तो पैसे कहां से आएंगे, इसलिए आरबीआई कुछ पैसे अपने पास रखता है। गवर्नमेंट ने ये बोला क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आरबीआई को ये बोला गया कि आप अपने
रिजर्व को कम करो। 1,76,000 लाख करोड़ रुपीस जो आपके पास हैं उसमें से आप कुछ पैसे हमें दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो। आरबीआई ने ये कहा, उर्जित पटेल जो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे, अब वो इंडिया छोड़ के यूएसए चले गए सरकार से नाराज होके, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये पैसे नहीं दूंगा बिकॉज दिस इज लाइक अ क्वेश्चन फॉर बैड टाइम्स, कि अगर इंडियन इकोनॉमी को कुछ नुकसान होगा तो ये पैसे हमें चाहिए। क्लियर। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आप ये पैसे हमें दो। उर्जित पटेल ने बोला कि मैं चला और अगला जो आएगा, जो भी आरबीआई गवर्नर आएगा आप उनको बोलना, उनसे ले लेना। फिर आए हमारे मिस्टर दास, मतलब गवर्नमेंट के मिस्टर दास, शशिकांता दास, आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम ये पैसे दे देंगे। जलान कमेटी अपॉइंट करी गई, कमेटी को बोला गया कि आप ऐसी रिकमेंडेशंस दो, स्टडी करो कि आरबीआई के पास कितना कैपिटल बफर होना जरूरी है, राइट। जलान कमेटी। फिर डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यू हैव टू स्टडी दिस योरसेल्व्स। देन कमिंग टू चिट फंड्स, राइट। चिट फंड बिल अलग है और ये जो बिल है ये अलग है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट। तो दीज टू आर डिफरेंट। चिट फंड स्कैम है जो शारदा चिट फंड स्कैम हुआ है जैसे वेस्ट बंगाल में, उससे रिलेटेड स्कीम्स, जो कि चिट फंड जो गरीब लोगों को बोला जाता है आप 1,000 रुपए दो, अगले दिन 10,000 रुपए मिलेंगे। गरीब लोग, पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, दे गेट ल्योर्ड बाय दीज काइंड ऑफ स्कीम्स। चिट फंड्स एक्ट, इसको अमेंड कर रहा है ये एक्ट। अंडर दी जो चिट फंड्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी गुड, differences are here, you have to read this again yourselves guys. Likewise ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, one by one I will come up with small videos on economic survey, most important topics of Indian economy is in front of you, then most important topics of Indian polity would be another video. So I just don't want to read these schemes, ये better नहीं होगा कि मैं इसे रीड करूं, सेल्फ स्टडी भी थोड़ी थोड़ी जरूरी है। तो I'll keep on coming up with these kind of videos in the coming 100 days. सो 100 डेज सीरीज हम यूट्यूब पे भी चलाएंगे। मनरेगा में जो रिफॉर्म किया गया, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा खुद पढ़नी होंगी। क्लियर। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया है। लाइकवाइज लीड्स इंडेक्स। सो एज आई सेड द पीडीएफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम www.jatinverma.org. आई एम जस्ट शोइंग यू अ ग्लिम्स ऑफ एवरी टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट। सरल इंडेक्स, देन कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, Trade and Development Report, United Nations Conference on Trade and Development, then Doing Business Report, what it measures, what the report measures, what has been measured. तो ये opening a business, getting a location, accessing finance, dealing with day-to-day operations, then Doing Business 2020 में क्या situation रही इंडिया की, Developing Country Status in WTO. India rallied 51 countries at WTO to reject a US presidential memorandum which has sought to deny special and differential treatment to developing countries. यूएसए ने ये कहा कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्रीज को देने की जरूरत नहीं है डब्ल्यूटीओ में। क्राइटेरिया क्या है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसे भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। देन WTO has not specified any criteria or process for determining this developing country status, has not specified any criteria. This is important for prelims, very important topic for prelims guys. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लें। ये टॉपिक्स मेरी वेबसाइट पे भी डेली बेसिस पे, जतिन वर्मा IAS एकेडमी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं इनको एक्सटेंसिव वे में पढ़ने के लिए। देन मैटर ऑफ चॉइस, WTO allows member countries to classify themselves as developed or developing. Developing country, even if a country is developed, it can classify itself as a developing country. Very nice, right? तो इसीलिए यूएसए ने ये कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हमें अगर बेनिफिट देने पड़ेंगे कंसेशनल ड्यूटी पे, कस्टम्स ड्यूटी पे, अगर हम गुड्स इंपोर्ट करने को उनको अलाउ करेंगे, तो दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, दिस इज नॉट गुड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? सो दैट्स व्हाई। क्लियर? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग इकोनॉमी। उबर ओला वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरीज जो भी हैं पर किलोमीटर उन्हें 12-13 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या उनकी कोई पेंशन स्कीम है, क्या उनके लिए कोई रिटायरमेंट फंड या कुछ ऐसा है? नहीं। इसीलिए ये स्कीम लाई गई गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए। गिग इकोनॉमी वर्कर्स वो हैं जैसे कि स्विगी के जो डिलीवरी पर्सन हैं, अमेजन के डिलीवरी पर्सन, राइट, उबर ओला के ड्राइवर्स,
like that. 20th livestock. Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has released 20th livestock census report. Very, very important again. So I may not be able to go into the get into the details of this. आप इसे थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे please. Now Jharkhand sees maximum increase. Power purchase agreements. Again, I have explained it briefly. So what are power purchase agreements? Between the contracting parties who generate, one who generates electricity and other who is purchasing the electricity. This is how it works. Then Prakash portal, power rail कोयला availability through supply harmony. प्रकाश पोर्टल ये क्या है कि power rail कोयला availability. The portal aims at bringing better coordination for coal supplies among all stakeholders. Ministry of Power, Ministry of Coal, Coal India Limited जो coal supply करेगी, railways and power utilities. क्योंकि कई बार रेलवे की ना लैक ऑफ अवेलेबिलिटी के चलते पावर कोयला जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, कोल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती. ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये बनाया गया है. राइट. द पोर्टल विल मेक अवेलेबल 4 रिपोर्ट्स एज डिटेल्ड बिलो. Then contract farming, then your national infrastructure pipeline, then your India Skills Report 2020, likewise mega food park scheme, Avanti mega food park in Devas district of Madhya Pradesh was inaugurated recently. In the light of that, then dedicated freight corridor, then Indian Railways conducted a trial run on Rewari, this mother section of Western Dedicated Freight Corridor. Northeastern Gas Grid Project. Prime Minister of India inaugurating Indradhanush Gas Grid Project. So this project is quite expensive, but this is going to be a good one for Indian economy in the long run. Rakesh Mohan Committee report के तहत ये बनाया जा रहा है. World Employment and Social Outlook. कौन लेके आता है इस रिपोर्ट को? International Labour Organization. Right, so Northeast Gas Pipeline Grid Project, another specifically dedicated to northeastern states of India. ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन के अंडर, ये स्कीम के अंडर जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंडर नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. देन अबाउट प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, सम डिटेल्स आर हियर, सो दिस इज देयर. देन कमिंग टू दिस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सेंट्रल गवर्नमेंट कट्स इट्स शेयर इन द फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सेंटर ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसे कम करने की बात कही है. कल परसों के डीएनए में ये न्यूज़ थी. एंड रिगार्डिंग द डीएनए, दीज डेज आई एम डूइंग द डीएनए ऑन चैनल बाय अनअकैडमी. यूट्यूब का चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट के नाम से एक चैनल है, आप उस चैनल पे डीएनए देख सकते हैं. राइट, अनअकैडमी आर्टिकुलेट. एंड दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, क्योंकि अब प्रीलिम्स पास में आ रहा है, तो उस मैगजीन में आर्टिकुलेट नाम की ये मैगजीन है. जतिन वर्माज आईएएस एकेडमी आप सर्च करेंगे गूगल पे, जेवी जतिन वर्मा मैगजीन गूगल पे सर्च करते ही आपको लिंक मिल जाएगा. नहीं तो आप डायरेक्टली www.jatinverma.org पे जाएंगे, मैगजीन डाउनलोड करेंगे. इस मंथ की मैगजीन में जो आने जा रही है, फेब की मैगजीन मार्च में, उस मैगजीन में हम पूरी स्कीम्स एंड पॉलिसीज को कवर करेंगे. उससे अगली मैगजीन में हम कुछ और इश्यूज, इकोनॉमिक सर्वे एटसेट्रा इस मैगजीन में कवर होने जा रहा है. लाइकवाइज फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ्स वी विल बी हैविंग सम स्पेशल फीचर्स. और जैसे प्रीलिम्स के बाद मेंस आएगा, फिर मेन स्पेसिफिक फीचर्स भी उसमें रहेंगे. तो आप मैगजीन आर्टिकुलेट नाम से जो मैगजीन है, आई एम द एडिटर ऑफ दैट मैगजीन. ईच एंड एवरी आर्टिकल इज बिंग रिटन बाय आवर टीम ओनली. तो इट्स जस्ट दैट टू पब्लिश दैट मैगजीन ऑन वाइडर स्केल हम लोग ये कर रहे हैं. और यूट्यूब का जो चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट नाम से जो चैनल है, सबसे ज़्यादा वीडियोस उस पर आ रहे हैं अभी डीएनए के. तो आप डीएनए के डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस उसी जोशो अंदाज में जैसा कि हम पहले कर रहे थे, आप आज रात 8:30 बजे वहाँ पे देख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता. क्लियर? सर्च करोगे अनअकैडमी आर्टिकुलेट जतिन वर्मा, यू विल बी एबल टू फाइंड इट. नाउ अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट इज़ अ फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. राइट, तो ये सब डिटेल्स इसकी दी गई हैं. रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. अब इन दोनों में आपको ये नहीं भूलना, यू हैव टू कंपेयर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विद वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. क्लियर? देन अपियारी ऑन व्हील्स, दिस इज द लास्ट पार्ट. ये एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फॉर इकोनॉमी सेक्शन.
And guys, now a bit of information about my website www.jatinverma.org. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, स्टूडेंट रिलेटेड क्वेरी, को आप studiesjatin@gmail.com पे जो है मुझे मेल कर सकते हैं. IAS तैयारी विद जतिन वर्मा टेलीग्राम, and then your Twitter also, and Facebook पे भी you can follow me, you can reach out to me through Messenger as well. And this is the YouTube channel. Instagram पे कुछ कुछ images, infographics हम डिस्कस जो है शेयर करते रहते हैं. तो ये सारे फीचर्स जो है हम लेके आ रहे हैं. एंड देन टारगेट 2020 के अंदर जो हमारे कोर्सेज हैं, इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, दिस कोर्स हैज नाउ बीन लॉन्च्ड 24 फरवरी से. दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन अनअकैडमी प्लस. तो आप अनअकैडमी प्लस पे जब अगर ज्वाइन करेंगे, मेरे सारे कोर्सेज, करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स भी वहीं पे चल रहा है. अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स एड्रेस किए जाते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं. तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन माय कोर्सेज, यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस. यू हैव टू यूज दिस कोड Jatin Verma 71. So this Indian economy course is going to start from 24th of Feb. Economic survey, budget, fundamentals of economy, everything will be covered in this course. अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% इस पर डिस्काउंट मिल जाता है. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सो दिस वाज ऑल गाइस. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020. थैंक यू. एंड लास्ट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग कुछ ऐसे मटेरियल की सर्च में है, कुछ बुकलेट की, जो कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा रिफाइन कर सके, तो अमेजन पे विजिट करके जतिन वर्मा टॉपअप मटेरियल आप सर्च कर सकते हैं. अमेजन जतिन वर्मा बुक्स, जिसमें कि आपको सोशल इश्यूज का और एग्रीकल्चर का एक टॉपअप का बुकलेट मिल जाएगा. वो भी आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से. दिस मटेरियल इज द एक्सक्लूसिव कंटेंट बाय आवर टीम जतिन वर्मा's IAS Academy. You can order your copy right away. Thank you guys. Bye bye. All the best guys.